Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkayan Education. Today I am going to discuss the Mechanical Engineering Objective Series for RRB JEE, SSC JEE, BPSC Assistant Engineer, BPSC Assistant Professor and Lecturer in the series of Strength of Material, that is Practice Set 4. तो चलिए हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1. Which type of load acts perpendicular to the surface and distributed over a small area, and that is called what? That is called point load. Okay. Next, इसको क्या है, पॉइंट लोड इसलिए बोलते हैं कि ये आपका ये क्या है, जैसे एक कैंटिलीवर बीम सपोज है, और ये जब भी हम यहाँ पे इस तरह से लोड लगा रहे हैं, दैट मीन्स आपका ये इस एरिया पे, स्मॉल एरिया पे हम बात कर रहे हैं, और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ओवर दिस वन इज द स्मॉल एरिया, एंड सो दैट कॉल्ड पॉइंट लोड. Which of the following statement is true regarding the stresses in a thin spherical pressure vessel is? तो thin spherical pressure vessel में क्या होता है कि रेडियल एंड हुप स्ट्रेस बोथ आर इक्वल. thin spherical vessel में रेडियल एंड हुप स्ट्रेस बोथ आर इक्वल. In question 3, in which type of beam is one end fixed while other end free is called? एक end fixed है, one end free है, that is called cantilever beam. A simply supported beam is one which is supported on more than two support? No, that is false. More than two support is called, that is continuous beam. A overhanging beam must overhang on both sides? No, maybe one side, maybe both side. That is not the must overhanging on the both side. That is wrong. A fixed beam is one which is fixed at both end. Both of ends are fixed. यदि हम फिक्स बीम की बात करें तो इस तरह से आपको क्या है, दोनों साइड से इस तरह से क्या होगी, फिक्स होगी, है ना. A continuous beam is one which is supported on more than two supports. Continuous beam क्या है, supported than, जैसे एक ये बीम है तो this one is one support, another one is this support, and this one is another support, जैसे A, B, C, that is more than two support, that is called continuous beam. A concentrated load is one which acts as a point on the beam, which acts at a point on the beam. A load which acts at a point on beam is not called uniformly distributed load. Yes, agree. That is called point load. A uniformly distributed load may be assumed to behave like a point load at the center of gravity of the load for all sorts of the calculation. Yes, क्योंकि आपका क्या है, सही है, क्योंकि जब भी हम जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करें, सपोज ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसको हम क्या करते हैं, मास को W/L से कैलकुलेट करते हैं, और ये हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लेंथ बात करते हैं. एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारा पूरा लोड एक्ट कर रही है. A load which is spread over a beam in such a manner that it varies uniformly over entire length of beam is called, है ना, तो that is called entire length of varying, uniformly varying. That is आपका क्या है, इस तरह से क्या है, आपको वायरी हो रही है, आपका एंटायर बीम पे इस तरह से वायरी होते जा रही है, यूनिफॉर्मली वायरिंग बीम, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वायरीज यूनिफॉर्मली, दैट इज कॉल्ड वायरिंग लोड. यदि इसमें आप किन्हीं को कंफ्यूजन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है और आइदर वायरिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसके ऊपर आप इसका एक्सप्लेनेशन कि यदि आप कुछ लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हाउ टू दैट कॉल डिस्ट्रीब्यूटेड, आप उसका सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन और ये जरूर शेयर कीजिए, सो दैट इसका हमारे हिसाब से तो आपका वायरिंग होगी. The shear force at a point on a beam is algebraic
sum of all forces on the either side, है ना, sum of the all forces. The bending moment on a section is maximum when shear force is, shear force क्या होगा उस मोमेंट पे, that is 0. The shear force at a certain point on a beam changing sign from positive value to negative value or either negative to positive, that is called vice versa. The bending moment at that point must be equal to 0. क्या होगा, 0 होगा? No, उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होती है, तो that is false. When a load on free end of a cantilever beam is increased, failure will be occurs at the fixed end. फेल्यूर हमारा कहाँ पे होगा, तो जैसे आपका ये कैंटिलीवर बीम है ना, यहाँ पे फिक्स एंड पे होते, तो कैंटिलीवर बीम है ना. अब यहाँ पे हमारा क्या है, लोड ये पहले P इक्वल टू 5 न्यूटन सपोज लग रही थी, देन उसको इंक्रीज करके 10 न्यूटन किए, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा देखिए क्या होगा कि इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट किस तरह से चेंज होगी. आपका बेंडिंग मोमेंट इस तरह से आपको होते जाते कि P इंटू एल, तो यहाँ पे कितना भी लगाएंगे तो एल इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 ये बढ़ते जा रही है. यदि हम क्या है, पहले केस में 5 थी, अभी 10 हो गई, तो ये फिक्स एंड पे क्या हो रही है, बेंडिंग मोमेंट बढ़ रही है. दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट फेल कहाँ पे होगी, फिक्स एंड पे. द बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इज, अभी हमने देखा कि फ्री एंड पे क्या होती है, दैट इज 0, है ना. A cantilever beam of length L carries a point load W at free end. The bending moment diagram is, अभी हमने क्या है, ये आपका क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है एंड दिस वन इज ए पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड. तो इसका शियर फोर्स डायग्राम पहले क्या हो जाएगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन, मतलब कांस्टेंट इस तरह से, है ना. और ये बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी कि आपका सपोज ये लाइन है, तो इस पॉइंट पे हमारा 0 होगा और ये धीरे धीरे बढ़ते आएगी P इंटू एल, दैट इज ट्रायंगुलर टाइप हो जाएगी, है ना. तो क्या है, ट्रायंगल विद द मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट द कैंटिलीवर एंड, दैट इज ऑप्शन डी. ये हमारा क्या है, दैट इज SF है, शियर फोर्स डायग्राम SFD, एंड दिस वन इज BMD. यदि यहाँ पे हम लोड P लगाए और ये लेंथ L है, तो ये क्या होगा, P होगा, और ये जो हमारा होगा P इंटू L होगा. Then when a cantilever beam is loaded with concentrated load, the bending moment diagram will be, है ना. तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा क्या बनेगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा क्या बनता है, दैट इज इंक्लाइंड, है ना, दैट इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन. अभी हमने प्रीवियस देखा कि इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन किस तरह से, इस तरह से आपका कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रही है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनती है, दैट इज दिस टाइप, ये हमारा इस तरह से. तो ये क्या है, ट्रायंगल इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन. यदि ये P आपका लोड है, ये L है, तो P इंटू एल. द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए कैंटिलीवर बीम लोडेड विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम है ना, इस तरह से एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारा लग रहा है. तो यदि हमारा इस केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रही है, तो इस केस में हमारा क्या होता है कि आपका जो शियर फोर्स डायग्राम होता है ना, शियर फोर्स डायग्राम जो होती है वो क्या है, इस तरह से आपका होती है. और जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे तो दैट इज पैराबोलिक इन नेचर, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर कर्व होगा. तो दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो दिस वन इज कर्वेचर, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर. यस, करेक्ट, 19 का A. The shear force of cantilever beam of length L carrying a uniformly distributed load of W per unit length it at free end. तो फ्री एंड पे हमारा क्या होगा, तो फ्री एंड पे क्या होगी, फ्री एंड पे ऑलवेज हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, दैट इज 0. The shear force of a cantilever beam of length L carries a uniformly distributed load per unit length at the fixed end.
तो फिक्स्ड इंड में हम जब बात करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, ये इस तरह से कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर हमारा क्या है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये लेंथ एल है, ये डब्ल्यू पर मीटर लग रही है। तो हमारा क्या होता है, कैंटिलीवर बीम में यदि हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो हमारा किस तरह से आती है कि W इंटू एल, तो इस तरह से आपका यह होता है यहाँ पे 0 और ये W इंटू एल, तो W इंटू एल दैट इज 20 शियर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगी, एक कैंटिलीवर बीम एट द फिक्स्ड एंड, तो W इंटू एल हो जाएगी, है ना, दैट इज 21 का D। The shear force diagram of a cantilever beam of length L carrying a uniformly distributed load of per unit length each, है ना, shear force diagram है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। The shear force diagram of a cantilever beam, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गई, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L एंड कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट लोड W पर लेंथ इज एट फ्री इंड, है ना, तो फ्री इंड पे हमारा पूछ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा, तो फ्री इंड पे हमारा ऑलवेज हम देख रहे हैं कि क्या होगा, W इंटू एल, तो L 0 है तो दैट इज 0। देन a cantilever beam of length L, है ना, a cantilever beam of length L carries a uniformly distributed load W Newton meter per run throughout the entire length. The maximum bending moment is 32 Newton meter. The rate of loading is, है ना, तो रेट क्या होता है, यदि हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू बेंडिंग मोमेंट, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर, डब्ल्यू हमारा निकालना है, एल इज क्या है, दैट इज 800, दैट इज 88 इज 64 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू दैट इज 3200, तो क्या हो गया, दैट इज 32, दैट इज 100, तो डब्ल्यू इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। The shear force and bending moment are 0. Shear force and bending moment at the free end of a cantilever is 0 if it is carries A, है ना। अब ये कौन सा लोड कैरी कर रहा है ना, यदि shear force हमारा क्या है 0 हो रहा है तो क्या हो रहा है, पॉइंट लोड एट फ्री इंड, तो यदि हमारा पॉइंट लोड रहेगा फ्री इंड पे तो उस केस में हमारा shear force 0 नहीं हो सकता है। पॉइंट लोड एट द मिडिल ऑफ लेंथ, ये भी नहीं होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटायर ओवर एस, यदि हमारा एक क्या है कैंटिलीवर बीम है ना, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मींस आपका जहां पे स्टार्टिंग हो रहा है वहां पे आपका होल लेंथ पे ये क्या होगा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट 0 होगी। द बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट एट फिक्स्ड एंड, है ना, तो क्या हो जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई व्हाट, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4, है ना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। द maximum bending moment of a cantilever beam of length L and carries a uniformly distributed load W per unit length lied of its middle of the length, क्या ये इसके बीचों बीच लेंथ पे काम करती है, तो नो, क्योंकि आपका यहां पे मैक्सिमम नहीं होता है ना, दैट इज इनकरेक्ट, है ना, दैट इज इनकरेक्ट। The shear force diagram of a cantilever beam of length L and carries a gradually varying load 0 at free end and W of the fixed end, that is क्या है shear force diagram, यदि हम उसको निकालेंगे कि आपका जो वायरिंग लोड है ना, तो वायरिंग लोड में हमारा क्या होता है, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर, है ना, पैराबोलिक आपका होता है क्योंकि आपका इस तरह से है ना, ये एक बीम है और इसके ऊपर क्या है, ये दैट इज ट्रायंगुलर लोडिंग है ना, ये हमारा लोडिंग है,
तो इस केस में जब हम शियर फोर्स डायग्राम हम बनाते हैं, ये शियर फोर्स डायग्राम, तो शियर फोर्स डायग्राम किस तरह से बनती है, ये आपका इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम बनता है। दैट इज ये क्या है, पैराबोलिक कर्व है ना, दैट इज पैराबोलिक कर्व। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम of a cantilever beam of length L carrying a gradually varying load 0 at free end and W at fixed end is parabolic curve S। क्योंकि आपका क्या है, पाराबोलिक, अच्छा क्या पूछा है, सॉरी बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट इज नॉट पाराबोलिक कर्व। अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट थर्ड डिग्री होगी, दैट इज डिसएग्री। 31. The shear force of a cantilever beam of length L carries a gradually varying load from 0 at free end and W fixed end. तो what is the bending moment? तो आपका इस केस में क्या होगा, जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो दैट इज WL/2 है ना, क्योंकि आपका एक फ्री एंड। The bending moment of a cantilever beam A line gradually varying from 0 at free end and W at fixed end, that is bending moment है ना। तो bending moment हमारा इस केस में क्या होगा है ना, तो जब हम bending moment की बात कर रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, bending moment किस केस में, WL/6। The bending moment at the end of simply supported beam will be 0, no, simply supported beam will be, bending moment at the end of a simply supported beam will be 0 s, क्योंकि आपका end पे 0 ही होता है। The maximum bending moment of a simply supported beam of a span L and carrying W at the center है ना। अब ये simply supported beam है, ये simply supported आपका क्या है, बीम है, एंड ये पॉइंट लोड W क्या लग रहा है, तो इस केस में हमारा पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो मैक्सिमम इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी, दैट इज WL/4, दैट इज WL/4। द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड एट इट्स सेंटर है ना, जब सेंटर पे हम बात कर रहे हैं कि सेंटर पे लगा है, तो आपका देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, दिस वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम सेंट्रली लोडेड P। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये शियर फोर्स डायग्राम की हम बात करेंगे, तो शियर फोर्स डायग्राम जो क्या होगी, इस तरह से जाएगी और ये इस तरह से है ना, शियर फोर्स डायग्राम। तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो बेंडिंग मोमेंट होगी इस तरह से जाकर ये इस तरह से आएगी, तो दैट इज क्या होगा, isosceles triangle। The maximum bending moment of a simply supported beam with central point lies at the point of loading S, क्योंकि point of loading पे ही maximum बनता है। The shear force of a simply supported beam carrying a central point load changes sign at its midpoint S। midpoint पे ही हमारा साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। The shear force in the center of simply supported beam carrying a uniformly distributed load per unit length है ना, तो shear force क्या बोल रहा है, simply supported beam का है ना, तो shear force आपका क्या है, इस तरह से एक simply supported beam है जिसके ऊपर uniformly distributed load W पर मीटर लग रही है, तो हमारा क्या है, इस तरह से आपको लाइन है, तो ये क्या हो रहा है, दैट इज WL बाई, यहां से WL/2, तो ये क्या हो जाएगी W×L/2, ये भी आपका WL/2। और इस केस में जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा क्या होता है, इस तरह से, और ये इस तरह से आपको मैक्सिमम होते, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम दैट इज क्या होता है, WL²/8। तो पूछा क्या गया है, शियर फोर्स, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगी, दैट इज
शियर 38 का शियर फोर्स कहां पे पूछ रहा है? आपका सेंटर पे, तो दैट इज 0, क्योंकि सेंटर पे आपका क्या हो रहा है? 0. द बेंडिंग मोमेंट इन द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो क्या हो जाएगी? WL स्क्वायर अपॉन 8. A simply supported beam of a span L carries uniformly distributed load over whole the span. The shear force diagram will be, है ना? तो सिंपली सपोर्टेड बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है? ये क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट ट्रायंगल. टू इक्वल एंड अपोजिट ट्रायंगल आपका बनता है. Then a simply supported beam L loaded by two concentrated load W at each length is this. The maximum bending moment is WL square by WL by 4. इन सिंपली सपोर्टेड, ये क्वेश्चन में यदि आपको कहीं डाउट है तो इसमें आप कमेंट करके, आपको यदि कोई कुछ सजेशन है तो आप कमेंट, क्वेश्चन नंबर 41 में आप कमेंट में जरूर हमें सजेस्ट करें. इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम carrying a uniformly distributed load W per unit length over the whole span, the maximum bending moment is given by. तो maximum bending moment क्या होता है? क्योंकि simply supported है uniformly, तो WL square upon 8, है ना? WL square upon क्या होता है? 8. Then the variation of bending moment due to uniformly distributed load is, uniformly distributed load है तो आपका वेरिएशन कैसा होगा? दैट इज पैराबोलिक इन नेचर. शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर लेंथ. इट कंसिस्ट ऑफ, एक कैसा होता है? तो आपका क्या होता है? टू राइट एंगल ट्रायंगल. ये क्या होता है? टू राइट एंगल ट्रायंगल. द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो पर मिनट लेंथ, तो क्या पूछा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दैट इज पैराबोलिक इन नेचर, क्योंकि आपका क्या होता है? ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उस केस में हमारा क्या होता है? पैराबोलिक इन नेचर. शियर फोर्स ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ग्रेजुअली लोड, है ना? अब हमारा क्या है? ग्रेजुअली वेरिंग फ्रॉम 0 एट बोथ एंड, है ना? 0 एट बोथ एंड पर मीटर लेंथ. तो उस केस में हमारा क्या होगा? तो क्या होगा? शियर फोर्स 0 एट बोथ एंड, तो 0 हो गए. द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ए ग्रेजुअली वायरिंग 0 एट बोथ एंड पर मीटर इज WL by 4. WL by 4 नो, WL by 4 नहीं होती, WL स्क्वायर by 6 होती है. द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ए ग्रेजुअली वायरिंग लोड from 0 at both ends and W per minute length is, तो आपका लाई करता है सेंटर ऑफ द बीम पे. तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हम यदि बात करेंगे तो उस केस में आपका क्या हो रहा था कि देखिए आपका विद ग्रेजुअली वायरिंग, है ना? तो ग्रेजुअली वायरिंग हो रही है, तो दैट मीन्स ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सॉरी दिस वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम, और एक एंड पे 0 और दूसरे एंड पे आपका इस तरह से लोड है, दैट इज ट्रायंगुलर लोडिंग है. तो ट्रायंगुलर लोडिंग है तो आपका यहां पे क्या होगा? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जब हम बात करेंगे तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से आपको आएगा, और ये बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा? इस तरह से आपको, है ना? तो ये बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी? WL स्क्वायर बाई 4. तो सेंटर पे लाई करेगा, तो नहीं, सेंटर पे आपका लाई होगा, बोथ इंट 0 पे है, तो यस सेंटर पे ही आपका लाई करेगा. द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस द साइन. जहां पे बेंडिंग मोमेंट हमारा साइन चेंज करेगा वहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बनता है. टू इक्वल लेंथ बीम, है ना? टू इक्वल लेंथ ऑफ बीम support their ends. One is carry central load W
and one other is distributed load W, the ratio of maximum bending moment to first two case. तो अब देखिए क्या है, दोनों में सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड, ये यहाँ पे लोड W लग रही है, और इस केस में आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रही है, दैट इज W, ये भी आपका W पर मीटर लेंथ है, ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है। तो यहाँ पे हमारा मैक्स बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगी, WL/4, और यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी, दैट इज WL²/8। तो हमारा फर्स्ट केस अपॉन सेकेंड केस दैट इज क्या आ जाएगी, 2। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट किए अप टू 50 क्वेश्चन। तो यदि आपको वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।